यूनिट 5 के आखिरी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम मेथड्स टू प्रूव थ्योरम कि थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं, कौन कौन से मेथड हैं उसमें, और इसके अलावा हम सर्कल और उसका एरिया, उसके सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। देन ट्राइंगल्स का एरिया, पाइथागोरस थ्योरम भी हम करेंगे और फिर उसके साथ हीरो फार्मूला करेंगे। तो आइए चलते हैं कि मेथड्स टू प्रूव अ थ्योरम। देयर आर टू मेथड्स, वन इज़ एनालिसिस मेथड एंड अदर वन इज़ सिंथेसिस मेथड। देन द थर्ड मेथड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज टू मेथड। तो सबसे पहले एनालिसिस मेथड इज़ in order to prove a demonstrative theorem, if we reach out a way starting from unknown items to be proved, means we are starting here which the items are unknown and we reach to the proof, then it is called analysis method, because there are some things which are unknown to us, and this method is actually a lengthy method, and sometimes it is difficult, but reasons for the steps are always there, and we have to give the clear reasons why we are moving from one step to another, and particularly the reasons for extension of the figure are obvious. And in this method, in analysis, we normally do the construction in the figure, whereas the synthesis method, which is the second method, in order to prove the demonstrative theorem, if we find out the steps while starting from the given. Normally, there are some statements of the theorem from which we decide what is given and what is to be proved. If the given is clear, then we are moving from those items to reach to prove. And this type of method is called the synthesis method. I can give you one example. For example, if we are going to prove the sum of angles of a triangle is 180 degree. So if we have to prove this one, this is a triangle, and these are the angles A, B, C, we can say. We have to prove that sum of the angles of a triangle is 180 degree. Means the given is there is a one triangle and three angles are there, angle A, angle B, angle C, and what is to prove? We have to prove that sum of the angle of measure angle A, measure angle B, measure angle C is 180 degree. So the figure which is given, it's not possible to start without having the construction steps. Therefore, what we are going to do, we are drawing a line passing through C, point C, and parallel to AB. Then there becomes angle 1, angle 2, angle 3, and we can easily prove that the sum of the angles of a triangle is 180 degree, and we use another theorem. And if the method we are using is the analysis method. Next is if there is another theorem, I'm moving towards that. If two lines intersect each other, if two lines intersect each other, the alternate angles are congruent. When the statement is starting from if means it's given. There are two lines which are intersecting each other. One line is, we may say this is a L and this is a M, and these are intersecting at point O. The alternate angles so formed, pair of angle 1, angle 2, these are alternate angles. This is a angle 3 and this is a angle 4. This is a pair of another alternate angles. So what we have to prove, angle 1 is congruent to angle 2, angle 3 is congruent to angle
4. Now you can see there is no need for construction. So here we are using the synthesis method because we are using the axioms and postulates of angles to prove that one. So I hope when you will go and see that how we can prove these theorems, then it will be clear to you what is the analysis method and what is the synthesis method. Normally we combine both of these two methods, synthesis and analysis and synthesis method, and we call this analysis and synthesis or analytical synthetic method. And in analytical synthetic method, we actually do some work by using the analysis, and then we go towards the synthesis. Normally, while solving the questions of mathematics, we do the induction as well as the deduction method as well. So here for proving the theorem, we use both analysis and synthesis. If we combine both of these, then in longer theorems, for example, if we are going to prove that the outer angle of a triangle is equal to sum of the opposite interior angles, or we can say exterior angle of a triangle is equal to sum of the two interior angles of the triangle. मैं ऐसे आपको एग्जाम्पल बना के बता देता हूँ. ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं. तो ये इक्वल होता है इन दोनों के सम के. तो ये जो थ्योरम जब हम प्रूव करते हैं तो इसमें हम फिर दोनों मेथड यूज़ करते हैं. कौन कौन सा? एनालिसिस और सिंथेसिस, और उसको हम क्या नाम दे देते हैं? एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड. आई होप यू हैव गॉट द आइडिया. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सर्कल. सर्कल होता क्या है? सर्कल एक नुकात का मजमूआ है. सर्कल एक नुकात का मजमूआ है. इट इज़ व्हाट वी कैन से, ये सेंटर हो गया, द फिक्स पॉइंट. It is moving from the fixed point. This is the fixed point, and the path around that fixed point are the points around this fixed point which are equidistant from that fixed point. Circle is a two-dimensional shape made up of a point that are at the same distance. What I have said, it is a equidistance. Points equidistant from fixed point. This is a fixed point, and all these points, जो ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है, लाइन आपको नज़र आ रही है, ये सारे पॉइंट्स से बनी हुई है. तो जब इनको हम आपस में मिलाएंगे तो वो इससे बराबर फासले पे होंगे. अब इसमें देखते हैं सर्कल के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए, और फिर हम इसके सेक्टर का एरिया फाइंड करने की तरफ जाएंगे. सर्कल का जो फिक्स पॉइंट होता है वो उसका सेंटर कहलाता है. अब इसके अराउंड जो ये एरिया है, अगर इसके मसलन एक सर्कुलर प्लाट है, उसके गिर्द हम एक चक्कर लगा लें तो जितना फासला हम कवर करेंगे वो उसका सरकमफ्रेंस कहलाएगा. और सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या है? 2 पाई आर. अब पाई फिक्स वैल्यू है जिसे 22/7 कहते हैं, और आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल. और रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के किसी एक पॉइंट तक का फासला रेडियस कहलाता है. दोबारा सुन लें, सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के किसी एक पॉइंट तक का फासला रेडियस कहलाता है. अब सरकमफ्रेंस क्या हो गया? 2 पाई आर. तो हमें 2 भी पता है, पाई की वैल्यू 22/7, और अगर रेडियस पता हो तो हम उसका सरकमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं. डायमीटर क्या होता है? 2 आर. इट्स अ डबल ऑफ द रेडियस. एंड एरिया ऑफ अ सर्कल के लिए फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर. तो ये 3 फार्मूलाज जब भी हम सर्कल की तरफ चलते हैं तो हमें याद रहने चाहिए, क्योंकि सर्कल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. अब मैंने एक टर्म आपको बता दी सरकमफ्रेंस, फिर डायमीटर और रेडियस भी आपको बता दिया कि सेंटर से किसी सर्कल के पॉइंट का फासला. अब कार्ड क्या होता है? सर्कल के 2 पॉइंट्स को जो भी लाइन मिला दे, मसलन मैं यहाँ कहता हूँ ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है,
इन दो को जो लाइन मिलाती है इसको हम कार्ड कहते हैं, ये कार्ड है। इसी तरह यहाँ से एक लाइन खींच लें तो ये भी एक कार्ड बन गई, यहाँ से लाइन खींचें तो ये भी एक कार्ड बन गई। तो हाउ मैनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन फॉर अ सर्कल? इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि एक सर्कल के लातादाद कार्ड्स ड्रा की जा सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है? जो कार्ड सेंटर से गुजरे, जो ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स को आपस में मिला दे और वो सेंटर से भी गुजरे, उसको हम डायमीटर कह देते हैं। और जो रेडियस है वो सेंटर का किसी एक पॉइंट तक का फासला है। लेकिन एक लाइन जो सेंटर के दो, अब मैं लाइन की बात कर रहा हूँ, पहले जब कार्ड की बात करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट है, उसके दो एंड पॉइंट्स हैं। जब लाइन की बात करते हैं तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो दोनों तरफ बढ़ रही है। तो कोई एक लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को कट कर रही हो, वो उसकी सीकेंट कहलाती है। मसलन ये एक लाइन हमने बना ली, ये इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी ये टच कर रही है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? सीकेंट। लेकिन अगर एक ऐसी लाइन हो जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई गुजरे, अब दो पॉइंट नहीं आए, ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई गुजर रही है, उसको हम टेंजेंट कह देते हैं। अब टेंजेंट कैसे ड्रा करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर हमने ये लाइन खींच दी। अब ये देखिए, ये सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई गुजर रही है, तो ये इसका टेंजेंट कहलाएगा। तो ये थी टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, सरकमफ्रेंस, रेडियस। अब हम आते हैं सेक्टर की तरफ। पहले आर्क और फिर हम जो है सेक्टर की तरफ जाते हैं। आर्क क्या होती है? सरकमफ्रेंस है पूरे का पूरा सर्कल के अराउंड जो फासला है वो उसका सरकमफ्रेंस, या आउटर एज ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड सरकमफ्रेंस। अब उस आउटर एज के ऊपर हमने दो पॉइंट अगर ड्रा कर लिए, ये दो पॉइंट को ही ले लें, इनको आपस में मिला लें, तो ये जो लाइन बन रही है ये इसकी आर्क कहलाएगी। अब आर्क जो है, जो भी दो पॉइंट है, ये आर्क बन गई। ये आर्क जो है, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं इनको हम सेंटर से मिला दें, तो ये वाला जो हिस्सा है ये सारे का सारा इसका सेक्टर कहलाएगा। दोबारा से, आर्क क्या है? सर्कल के ऊपर दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट्स को आपस में मिला दें, जो सरकमफ्रेंस का वो वाला हिस्सा है वो आर्क कहलाएगा। अब उसमें दो पॉइंट आपने ले लिए तो एक माइनर आर्क बन जाएगी, एक मेजर आर्क बन जाएगी। मैं मसलन कहता हूँ कि ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से बी की तरफ जब हम यहाँ से पहुँच गए तो ये हमारे पास माइनर आर्क बन गई। अगर ए से बी इधर से आएंगे इस रास्ते से, तो ये इसकी मेजर आर्क बन जाएगी। अब देखिए, मेजर आर्क का एंगल कोई और होगा और माइनर आर्क का एंगल कुछ और होगा, यानी मेजर आर्क का एंगल बड़ा होगा, माइनर आर्क का एंगल छोटा होगा। अब इसका सेक्टर, जब उन दो पॉइंट्स को यानी ए और बी को सेंटर से मिला देंगे, तो वो जो एरिया है, सेक्टर इज़ द एरिया एनक्लोज्ड बाय द आर्क एंड टू रेडियाई। अब कार्ड का मैंने आपको बता दिया, टेंजेंट का, सर्कल का, जो रेडियस का और डायमीटर का भी बता दिया। यहाँ पे एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, समटाइम्स हम कहते हैं रेडियल सेगमेंट और समटाइम्स हम कहते हैं रेडियस। अब जो रेडियल सेगमेंट है वो लाइन है और जो रेडियस है वो उस लाइन की मेजरमेंट है। मसलन मैं कहता हूँ रेडियल सेगमेंट, यहाँ अगर ये ओ है और ये बी है, तो ओ बी इज़ अ रेडियल सेगमेंट। मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ओ बी इज़ अ रेडियल सेगमेंट। और जब मैं कहता हूँ रेडियस है फॉर एग्जांपल, तो इस मेजर ओ बी इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर की लाइन होती है तो ये इसका रेडियस बन जाएगा। तो ये वो टर्म्स हैं जो सर्कल से रिलेटेड है, उम्मीद है आप इन्हें समझ लेंगे। अब हम आते हैं कि किसी सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप देखें, आपको वाज़े तौर पे जो है एक तरफ माइनर आर्क और एक तरफ मेजर आर्क और उससे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर मिल गया। तो इसका एरिया फाइंड करना है कि माइनर आर्क का
एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पूरे का पूरा सर्कल के अंदर कितनी डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्रीज होती हैं। तो जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को अगर हम थीटा कह देते हैं तो इस सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा ओवर 360। यानी जितना एंगल उसके साथ बन रहा है उसको हमने पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मेजर आर्क यानी ए सी बी का एरिया फाइंड करेंगे और इसको हम कह देते हैं थीटा 2 कह देते हैं, या इसको फाई कह देते हैं, इसका एंगल फाई है, तो फिर इस सेक्टर का जो मेजर सेक्टर है इसका एरिया किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई फाई ओवर 360। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर आप किसी भी सेक्टर का, सर्कल का जो सेक्टर है उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा ओवर 360। उम्मीद है आपको याद रहेगा। इसके बाद आता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये किसके लिए है, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए होता है। ये बात याद रखनी है, जब भी हमने पाइथागोरस थ्योरम की बात करनी है तो ट्राइंगल का एक एंगल या एक जाविया 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। थीटा ये एक एंगल है जो हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये अगर ए है, ये सी है, ये बी है, तो थीटा के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर और बेस आ गया। तो जो थीटा और 90 जिसके साथ दो एंगल बन रहे हैं वो बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर, इसको मैं पी लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस ज़रा थोड़ी है तो इसलिए पूरा परपेंडिकुलर लिखा नहीं जा रहा। मैं दोबारा से आपके लिए फिगर बना देता हूँ। ये एंगल आपके पास 90 डिग्री का, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसकी स्टेटमेंट को देखें, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। अब अदर टू साइड्स कौन कौन सी हैं, बेस और परपेंडिकुलर। अब इसको हम यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो है इसकी साइड्स को ए बी सी से बताया गया। आइए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर मैं इसको थीटा लिखता हूँ तो आप मुझे बताएं इसका परपेंडिकुलर क्या होगा। परपेंडिकुलर इसका 6 हो गया, और बेस इसका 8 हो गया, और हाइपोटेन्यूज इसका x है। हाइपोटेन्यूज को हमने फाइंड करना है। तो अब देखें फॉर्मूला हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64 है, 6 का स्क्वायर 36 है, इन दोनों का सम कर लें तो ये 100 के इक्वल आ गया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू आ गई 10। जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू 2 आती हैं प्लस और माइनस के साथ, लेकिन ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसे प्लस लिखते हैं। तो जब भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल्स दिए, एक एंगल दिया हो, एंगल ना भी दिया हो, दो साइड्स दी हों, तो हम तीसरी साइड को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम है क्या, जल्दी से रिकॉल करें। यस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नेक्स्ट देखें हीरो फार्मूला, देयर इज अनदर एग्जांपल, और इसमें हम स्क्वायर का डायगोनल भी जो है पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर सकते हैं।
मसलन स्क्वायर है, ये ए बी सी डी आपके पास बड़ी अच्छी सी फिगर बनी हुई है, ये एक स्क्वायर है, उसमें एग्जांपल 4 से ली गई है, आप इससे 5 से भी ले सकते हैं। ये 5 साइड है, मीन स्क्वायर है तो उसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, ये 4 है तो सब 4 हो गए। अब देखें हमने डायगोनल फाइंड करना है, यानी हमने लेंथ ऑफ ए सी फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, बिकॉज ए सी इज़ अ हाइपोटेन्यूज। तो जब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम है, ये 16 प्लस 16, 4 का स्क्वायर भी 16, इधर भी 4 का स्क्वायर 16, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब 32 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये इक्वल होता है 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 2 उसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया ए सी इज इक्वल टू 4√2। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये 5 हो तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास जो है ए सी बन गया, ये बी बन गया, ये डी बन गया, तो हमने ए सी फाइंड करना है, तो ये साइड भी 5 होगी। तो अब देखें बेस 5 है, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो हमें क्या मिल गया 25 प्लस 25 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो 50 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लें तो ए सी हमारे पास आ जाएगा 50 का स्क्वायर रूट और ये 5√2। तो सिमिलर मेथड यूज़ करते हुए यानी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए आप डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल भी फाइंड कर सकते हैं। होपफुली आप जो है ये एग्जांपल्स अपनी बुक में फाइंड करेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए जो ट्राइंगल आपके पास राइट एंगल नहीं है तो एक और फार्मूला है जिसे हम हीरो फार्मूला कहते हैं। अब हीरो फार्मूला को समझने के लिए आप देखें ये एक ट्राइंगल है, इसकी साइड्स है, इसको मैं कहता हूँ ये जो वर्टेक्स है ये ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है, और सी के सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल सी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से। ये रूल आपने याद रखना है, जब भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो तो वर्टेक्स को कैपिटल लेटर से और लेंथ ऑफ साइड्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे तीनों साइडें हमें दी हुई हैं, यानी ए बी और सी लेंथ ऑफ साइड्स दी हुई हैं। तो इससे वैल्यू एस की वैल्यू फाइंड करते हैं। एस के लिए फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी तीनों साइडों को आपस में जमा कर लें और उससे 2 से डिवाइड कर दें तो हमें एस की वैल्यू मिल जाती है। जब हमें एस की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, और एरिया का फार्मूला क्या है, एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यानी जो एस हमने फाइंड कर लिया, एस की वैल्यू फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो एस की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस 4 प्लस 5 9 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ गया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें एस 6 लिख लिया, 6 माइनस 3 एस माइनस ए ये 3 आ गया, इसके बाद 6 माइनस बी ये 6 माइनस 4 हो गए तो ये हमारे पास 2 आ गए, और यहाँ पे 6 माइनस 5 हमारे पास 1 आ गया, इसका स्क्वायर रूट। अब देखें 6 3 इज़ 18, 18 2 इज़ 36, 36 का स्क्वायर रूट हमें 6 इज़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मिल गई। तो इसी तरह आप किसी भी ट्राइंगल्स के जिसकी तीनों साइडें हमें दी हों, हम हीरो फार्मूला को यूज़ करते हुए उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसकी अगली एग्जांपल आपको दी गई है, एक ट्राइंगल है जिसमें ये ए बी सी हम लिख देते हैं, एक साइड 17 है, दूसरी साइड 10 है, तीसरी साइड 21 है, तो तीनों को हमने जमा कर लिया ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें मिल गया ये आप ऐड कर ले तो ये 48 आ जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 24। अब जो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की जगह हमने 24 लिख दिया, एस माइनस ए अगर आप करें यानी 24 में से आपने ए उसने रखा है 10 को,
तो ये ए इधर रखा है उसने, ए और ये बी और ये सी। तो आपको s माइनस ए, s माइनस 10 आपको 14 मिल गया, s माइनस बी यानी s में से 17 निकाल दें तो आपको 7 मिल गया 24 में से, और फिर 21 निकालेंगे 24 में से तो हमें 3 मिल जाएगा। अब इन चारों को मल्टीप्लाई कर लिया, हमें मिल गया 7056, और जब उसका स्क्वायर रूट लिया तो ये हमें 84 मिल गया। तो इस तरीक़ा से ये बड़ा सिंपल है हीरो फार्मूला, और आप आसानी से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल मीन उसमें ट्राइंगल भी उसमें रेक्टेंगल भी आ जाती है, उसमें स्क्वायर भी आ जाता है, उसमें पैरेललोग्राम भी, उसमें रेम्बस भी, उसमें काइट भी। तो जब भी उसका एरिया फाइंड करना होगा तो हम उसका डायगोनल फाइंड करेंगे। डायगोनल जो है अगर हमें गिवन है तो इट्स फाइन, अगर गिवन नहीं है तो पहले हम डायगोनल फाइंड कर लेंगे। इस पर्टिकुलर केस में हमें एक पैरेललोग्राम दी गई है जिसके दोनों साइडें बराबर हैं और उसका डायगोनल 40 है। तो इसको हीरो फार्मूला यूज़ करते हुए 25 जमा 25 जमा 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 45 आ गया। हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, हमने मल्टीप्लाई किया इनको, और उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया। ये 300 मीटर स्क्वायर हमें इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC मिल गया। जब ADC पहले हमने उसका डायगोनल ड्रा करके ADC इसका एरिया हमें मिला है। अब क्योंकि दोनों इक्वल है तो इसलिए इसमें इसका एरिया भी सेम होगा, हमने इसको ऐड कर दिया तो ये हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल गया। तो अज़ीज़ तलबा, इस तरह की एग्जांपल्स आपके बुक के अंदर मौजूद हैं। उम्मीद है आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आप इन कंसेप्ट्स को आसानी से समझ जाएंगे। हमने आज के इस प्रोग्राम में थ्योरम्स को प्रूव करने के तरीक़ों से शुरू करके सेक्टर का एरिया फाइंड करना, जो कि सेक्टर सर्कल का यानी एक हिस्सा है, उसका एरिया फाइंड करना, और उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा ओवर 360। जब उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम एक जो है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, वो बता दिया आपको, और फिर हमने हीरो फार्मूला और उसके सवालात को हल किया। उम्मीद है आप इसकी मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे। आज हमारा ये यूनिट 5 ख़त्म हो गया। यूनिट 5 ज्योमेट्री के मतलब था, जिसमें हमने ज्योमेट्री के मुख्तलिफ़ कंसेप्ट्स को पढ़ा। फिर उसके बाद ज्योमेट्री जो है हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भी की, और फिर जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री जिसमें हमने फार्मूलाज को प्रूव किया या थ्योरम्स को प्रूव करना, और उसके बाद एरिया यानी मेंसुरेशन वाला पार्ट भी इसके अंदर एड्रेस किया। उम्मीद है इन 6 प्रोग्राम्स जो यूनिट 5 पे है, थोड़ा लेंथी है, आप इन्हें दोबारा देखेंगे, इन्हें पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज्योमेट्री के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।